evening, everyone. A very warm welcome to all of you. Before we begin this fun-filled evening, the second session of the Storytellers event, where we meet some monsters and sometimes some men in jungles and sometimes urbanscapes, there are a few announcements that I would like to make. Please put your phones on silent. The most boring announcement, but yes, the pleasure of listening to stories enhances many times over when there is no interception by technology. So please put your phones on silent. Then I'd like to share some of the fascinating sessions that Indira Gandhi National Center for the Arts conducts. Every fourth Thursday at 4 p.m., we have the Book Circle session where we listen to writers read excerpts from their books. You're most welcome to join us for some of these sessions in the library. Every second and fourth Friday, we have the Film Circle session where we screen films and documentaries, and you can interact with the filmmakers thereafter. So you're most welcome to join us. You can also follow us on Facebook and Twitter, and our website is www.ignca.gov.in. Please leave your email IDs at the registration desk if you wish to be on our mailing list. Now, with the information over, let's plunge into the fascinating world of storytelling with some of the most amazing storytellers from UK. But before that, I'd like to invite Dr. Mangalam Swaminathan, who's the program director of IGNCA, to kick off this session. Good evening, everybody. Welcome to this beautiful, beautiful space, amphitheater at IGNCA. This is a 3-day festival. If you've come yesterday, we had a panel discussion before the start of the professional storytellers, and we have structured it like this. And today we have an open session. Anybody from the audience can please come and tell your story. 2 minutes, 3 minutes, maximum 5 minutes. And tomorrow, during this time, between 4:30 and 5:15, we have a workshop with the storytellers, the professional storytellers. You could ask them what to do, what not to do, how to become a storyteller, and what does it mean to be a professional storyteller? Is it exciting? And so in the panel discussion, we raised some of these issues about, what is the need for a storyteller and what is the role they play in the society, and how it has become a profession now, what was done very, very smooth, home to home. And these were some of the issues that we took up yesterday. And we have 3 storytellers from UK, Emily and Giles and Tim. And we have 3 storytellers from India. Yesterday we had the Puran Bhatt puppet group. And today we have the Swang from Uttar Pradesh. And tomorrow we'll have a person, Uma Venkatraman, who will tell Indian stories. And Emily also tells some Indian stories. She's been following and she's been doing research in Indian stories. So I now invite people from the audience to anybody, elders, kids, any story, please come. I am Garima, and I'm here to tell you a story from Maharashtra. It's a folktale from there. Before starting, I would want to really thank IGNCA and everybody to have something like this as an open mic, wherein storytellers like us also get some kind of opportunity to come on a platform like this in front of you. So thank you so much. Thanks a ton. Okay, so everybody, all the ones who want to hear the story first have to clap. Oh, superb. Thank you. That's encouraging. And now we're going to put all our hands up in the air, and we all are going to say, story time! Story time! Now, I can't hear you. Once more. Let's try it once more. 1, 2, 3, go! Story time! That's nice. That's very encouraging, and that's how I'm going to start my story now. Well, the story is going to be in Hindi because that's something that is the essence of this folktale from Maharashtra. So, anyone here who doesn't understand Hindi? A few. So, I'll try and translate it somewhere in the middle. You'll have to give me 30 seconds extra for that. Okay. तो एक छोटा सा गांव था और उस छोटे से गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी और उस छोटी सी फैमिली में मम्मी पापा और 2 छोटी बेटियां रहती थी. एक का नाम था एकी और दूसरी का नाम था दुक्की. Weird names, right? Eki and Dukki, and everybody is wondering कि ये नाम कहाँ से आए? I'll tell you. एकी का नाम एकी इसलिए था क्योंकि उसके सर पे था एक बाल और दुक्की का नाम दुक्की इसलिए था क्योंकि उसके सर पे थे 2 बाल. Very smart. Okay.
लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रोज सुबह दुक्की उठती थी और एकी को चिढ़ाने लगती थी, और दुक्की एकी को देख के कहती थी तेरे सर पे तो सिर्फ एक बाल है, मेरे सर पे तो 2 बाल है, मैं तो कितनी सुंदर हूँ और तू तो सुंदर भी नहीं है। अब एकी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता था, या अब एकी एक दिन उसको इतना ज़्यादा बुरा लगा कि वो रोने लग गई, और रोते रोते उसने ये डिसाइड किया कि वो अपना गांव छोड़कर जंगल में चली जाएगी। That's worrisome, but she was really sad. तो मेरी कहानी आयरलैंड की एक कहानी है। आयरलैंड में एक किसान था, उसका नाम था टॉम। अब टॉम सुबह सुबह निकला अपने खेत की तरफ, और उसे ठक 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 की आवाज़ आई। उसने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या है। वो दबे पांव आगे गया और उसने देखा कि एक झाड़ी के नीचे एक छोटा सा आदमी, सिर्फ इतना बड़ा, उसने हरे रंग के कपड़े पहने, नीले रंग के मोजे पहने, लाल रंग की टोपी पहनी, बैठ के जूता बना रहा है। उसको एकदम से याद आया कि आयरलैंड में लेप्रेशॉन होते हैं, और लेप्रेशॉन्स को गढ़े हुए खजाने के बारे में पता होता है। उसने सोचा अरे वाह, खजाना मिल गया मुझे। पर लेप्रेशॉन्स बहुत होशियार होते हैं। वो दबे पांव जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, लेप्रेशॉन ने पीछे मुड़ के देखा। उसने कहा गुड मॉर्निंग। पता लग गया था, लेप्रेशॉन को पता लग गया है, वो पहुंच गया है। उसने बोला गुड मॉर्निंग। लेप्रेशॉन ने बोला क्या काम है। और उसने देखा कि लेप्रेशॉन एक छोटा सा जग अपने पास लेके बैठा हुआ है, और बीच बीच में लेप्रेशॉन एक छोटा सा आदमी होता है, उसको जादू आता है। और उसने देखा वो छोटे से जग में से बैठ के कुछ पी रहा है। तो टॉम ने उससे पूछा क्या पी रहे हो। उसने बोला बियर है। उसने बोला बियर पी रहे हो। उसने बोला हाँ, खास है, फूलों से बनाई है मैंने। उसने बोला फूलों से बनाई हुई बियर, मैंने तो कभी नहीं पी। उसने बोला तुम्हें नहीं पता, ये पुरानी फैमिली रेसिपी है, तुम्हें नहीं पता। अब वो सोच रहा था इतने में किसान कि इसको कैसे पकड़ूं ताकि गड़े हुए खजाने के बारे में पता लगे। पर लेप्रेशॉन्स बहुत होशियार होते हैं। फिर भी किसान ने उससे पूछा, टॉम ने उससे पूछा मुझे पिला दो थोड़ी सी बियर। उसने बोला बियर छोड़ो, अपने खेत का ध्यान रखो, जाओ, उससे ज़्यादा फायदा होगा तुम्हें। उसने बोला थोड़ी सी एक सिप पिला दो। जैसे ही लेप्रेशॉन उसके लिए बियर डालने के लिए मुड़ा, टॉम ने धप से उसे पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी में लेप्रेशॉन को पकड़ लिया। और उसने बोला मुझे बताओ खजाना कहाँ है। लेप्रेशॉन ने बोला छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। उसने बोला पहले मुझे बताओ कि खजाना कहाँ दबा हुआ है। लेप्रेशॉन ने बोला काफ़ी होशियार लगते हो, अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ खजाना कहाँ दबा हुआ है। उसने बोला आगे जाना पड़ेगा। अच्छा आगे जाओ, अच्छा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अच्छा नो 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 राइट, अरे थोड़ा सा पीछे पीछे पीछे। टॉम ने बोला अरे चुप, पहले बताओ खजाना कहाँ दबा हुआ है। उसने बोला अच्छा बताता हूँ, थोड़ा सा और आगे जाओ, सीधा घुमाते 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 वो उसे एक खेत में ले गया। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, और लेप्रेशॉन खेत के बीच में ले जाके उसने उसे बोला इस झाड़ी के नीचे है खजाना। टॉम ने बोला होशियारी दिखा रहे हो। उसने बोला नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस झाड़ी के नीचे खजाना है, खोदो तुम्हें मिल जाएगा, खूब सारा सोना है, हीरे हैं। टॉम खुश, उसने बोला अरे वाह, अब गड़ा हुआ खजाना किसे नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए। कल नौकरी पे ना जाना पड़े, ऑफिस में ना जाना पड़े, खेत में ना जाना पड़े, सभी को खजाना चाहिए। उसने बोला अच्छा ठीक है। अब एक हाथ में लेप्रेशॉन, दूसरे हाथ से कैसे खोदे वो। उसने सोचा हाँ बिल्कुल, कैसे खोदे।
उसके लिए तो कुछ चाहिए, फावड़ा चाहिए, कुछ कुदाल चाहिए, खजाना निकालना है भाई। तो उसने लेप्रेशॉन से बोला, 1 मिनट। उसने अपना स्कार्फ निकाला, उसने एक पीले रंग का स्कार्फ पहना हुआ था। उसने स्कार्फ निकाला और उसने उस झाड़ी पर बांध दिया और उसने लेप्रेशॉन को बोला, अच्छा मैं घर से फावड़ा और कुदाल लेकर आता हूँ। तो लेप्रेशॉन ने बोला, ठीक है, मुझे तो छोड़ दो, मुझे तो जाने दो। उसने बोला, पहले वादा करो, तुम ना तो उस स्कार्फ को छुओगे और ना उस झाड़ी को छुओगे। लेप्रेशॉन ने बोला, अक्लमंद इंसान लगते हो, थोड़े कम मिलते हैं पर लगता है तुम हो। बोला ठीक है। तो मैं जो कहानी सुना रहा हूँ हिंदी में सुना रहा हूँ, प्रेमचंद की है, बहुत लोकप्रिय है, बच्चों ने पढ़ी भी होगी शायद। परीक्षा। तो देवगढ़ रियासत के दीवान बूढ़े हो चले थे, उन्हें परमात्मा की याद आई, सोचा कुछ धर्म का अब काम किया जाए। तो उन्होंने जाके कहा कि हे राजन, अब श्रीमान ने आपकी इतनी सेवा की है 40 वर्ष तक, अब मुझे रिटायरमेंट दे दो, जाने दो, बहुत साल हो गए हैं, कहीं बुढ़ापे में कोई भूल चूक से नेक नामी पे एक दाग ना लग जाए। तो राजा तो जानता था कि इसका जो ये दीवान है ये बहुत अक्लमंद है, अनुभवशील है, नीति कुशल है, सब कुछ है, इसे कैसे जाने दिया जाए। तो बहुत मनाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो राजा ने कहा, चलो ठीक है, पर जो अगला दीवान है वो भी तुम्हारे जितना ही अच्छा हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, एक चुनना होगा दीवान। उसने कहा, ठीक है राजन, ऐसा ही होगा। तो अगले दिन अखबारों में अनेक पत्रों में विज्ञापन निकल आया कि जिन जिन व्यक्तियों को दीवानी पद के लिए अपना नाम दाखिला कराना है वे आ जाएं देवगढ़ रियासत, और वहीं महल में उनका रहन सहन होगा, 1 महीने तक वे वहीं रहेंगे। डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्या से ज़्यादा यहाँ पे कर्तव्य की बात है, कर्तव्य पे ध्यान दिया जाएगा। और हृष्ट पुष्ट हो, मंदाग्नि के रोगी को यहाँ तक आने की कोई कष्ट ना हो। तो अब डिग्री भी नहीं चाहिए, नसीब का खेल है, 1 महीने रहना है। तो बहुत भीड़ आई वहाँ पे, जहाँ से रेलगाड़ी आ रही है देवगढ़ पर ही लोग आके उतर रहे हैं, नए नए लोग आए, नए फैशन के लोग, अलग अलग तरीके के खूब लोग आ गए वहाँ पे। और वहाँ पे वो राजमहल में रहे, क्योंकि वहीं पर ही तो उनको रहना था, वहीं पर ही तो उनकी असल परख है। अब पहले जनाब रात को लेट सोते थे, सुबह देर तक उठते थे, 9-10 बजे आके उठते थे, और आजकल बगीचे में टहलते हैं, उषा के दर्शन करते हैं बिल्कुल सुबह सुबह। दूसरे जनाब एक थे, खूब हुक्का पीने की लत थी, लेकिन आजकल बंद किवाड़ किए हुए छोटा सा एक सिगार पिया करते थे केवल। तीसरे, चौथे, 5वें जनाब, ये लोग तो ऐसे थे जो नौकर के नाक में दम करके रखते थे अपने घर पे, और यहाँ पे किसी से आपके सिवा बात ही नहीं करते थे। और भी थे जो हकसले के उपासक थे, नास्तिक थे, आजकल धर्म चर्चाएं करते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी पूजाएं करते हैं कि बगल वाले जो पुजारी है उसे पदच्युत होने की चिंता हो जाती है, कहीं मेरा पद ना हड़प ले। एनीवे, हर एक व्यक्ति अपने विवेक से कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहा था कि वह नज़रों में आए और उसे वह पद मिले, क्योंकि किसने देखना है बाद में, एक बार दीवान बन गए कौन देखेगा इसके बाद, 1 महीने का ही तो कष्ट है। रोजेदार मुसलमानों की तरह लोग दिन गिनने लगे। लेकिन वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ ये देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। चलो कुछ दिन बीत गए, 2-4 दिन ही बाकी थे। तो ये जो नए फैशन वाले हमारे मित्र थे, पूरी मंडली, इन्होंने सोचा कि एक हॉकी का खेल क्यों ना हो जाए, नई चीज़ है, ये भी तो एक विद्या है, ये क्यों ना दिखाई जाए। हर एक चीज़ तो कोशिश कर ही रहे थे। तो निर्णय हो गया, फील्ड लग गई, और एक ऑफिस का अप्रेंटिस जैसे गेंद ठोकरे खाने लग गई मैदान में। यहाँ से कोई जाता, पूरी एक लहर सी उठती, वहाँ पे जाती, और जैसे ही गोल करने लगती एक चट्टान से आके उनको रोक देते लोग। सारे हृष्ट-पुष्ट तो थे ही थे, खूब लोगों का खेल था। पूरा दिन बीत गया, निर्णय नहीं हो पाया। खून पसीने में तर बितर हो गए, थक गए, हाफ के बेदम हो गए सबके सब, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। अब शाम हो चली थी, अंधेरा छा रहा था। बाहर एक किसान अपनी गाड़ी लेके जा रहा था और वो एक दलदल में फंस गया, क्योंकि बाहर वो छोटी सी जगह थी, तो ऐसा कोई ब्रिज फ्लाईओवर तो था नहीं वहाँ पे हमारे दिल्ली की तरह।
और थोड़ी ऊंचाई भी थी, बारिश का ही मौसम था, तो वो धंसा हुआ पूरे अनाज की बोरी थी और बैल कमज़ोर थे और किसान भी बूढ़ा था। अब वो बात है, वो किसान है और वहाँ पे जितने भी लोग आए वे उम्मीदवार हैं, तो वो ऐसे जाके थोड़ी बोल सकता है कि साहब जी ज़रा मदद कर दीजिए हमारी। साहब नौकर को बोल सकता है मदद कर दो मेरी, नौकर थोड़ी बोल सकता है। तो अब वो क्या करता, कोशिश करता, बैलों को हाँकता, निकलो भाई निकलो। अब वो नहीं निकलती गाड़ी, क्योंकि कीचड़ भी था, फंस गए थे, बैल भी कमज़ोर थे। तो वो ऐसे बैठ के बस सहमा हुआ सा लोगों को देखता, कोई आ जा रहा है, कोई काश मेरी मदद कर दे, सहमी हुई आंखों से देखने लगा। लेकिन ये सारे के सारे उम्मीदवार चलते गए। उनके मन में स्वार्थ था, मद था, लेकिन उदारता और वात्सल्य किसी में नहीं था। फिर एक व्यक्ति आए वहाँ पे, उन्होंने भी हॉकी का खेल खेला था, उम्मीदवार ही थे। लग गई थी उनको चोट पैर में, थोड़े से हल्के से लंगड़ाते हुए चल रहे थे, थके हुए थे। तो उन्होंने देखा और देखते ही सारी बात एक समझ गए। उन्होंने अपना हॉकी स्टिक जो डंडा था वो रखा थोड़ा सा दूर एक किनारे पे और किसान के पास जाके कहा कि मैं गाड़ी निकाल दूं। अब वो किसान क्या कहे, उसने कहा हुजूर आप देख रहे हैं, वो पूरी बात भी नहीं कह पा रहा है, हिचक भी रहा है। तो कहता है चलो कोई ना, तुम बैलों को हाँको, मैं पीछे से धक्का मारता हूँ। तो किसान खुशी खुशी चला गया, बैल हाँकने लगा और ये जो जनाब जी हैं ये वो दलदल में घुसे और गाड़ी को पीछे से धक्का दिया। खूब जोर लगाया, मेहनत की, अंत में जाके हिम्मत बन गई, बैलों ने खींचा और वो गाड़ी बाहर आ गई। और उसने ऐसे ही कहा चलिए आपकी गाड़ी बाहर आ गई तो मैं चलता हूँ। और किसान ने तब कहा कि यदि प्रभु चाहे तो दीवानी आप ही को ही मिलेगी। अब इसको अजीब लगा, क्योंकि ये बात इसने क्यों कही। फिर थोड़ा ध्यान से देखा तो ये समझ में आया कि कहीं यही तो सरदार सुजान सिंह तो नहीं है। तो मैं एक छोटी सी कहानी, मैं गुजरात से हूँ और मैं गुजरात की कहानी लेकर आ रही हूँ। वहाँ पे एक शिक्षणविद हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत कहानियाँ लिखी हैं। तो यही बच्चों की कहानी मैं संक्षेप में कहने की कोशिश करूँगी और 5 मिनट 7 मिनट की समय मर्यादा में। तो हमने अभी तक सुनी राजाओं की कहानी, गांव की कहानी। ये कहानी भी एक छोटे से गांव की है, ठीक है। तो उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था गंगाराम। अब आपको क्या चीज़ करना बहुत पसंद है? बच्चे यहाँ बैठे ना, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट? पार्डन मी? रीडिंग। एनीबॉडी लाइक्स फूड? खाना खाना पसंद है किसी को? राइट। तो ये गंगाराम जी थे। फुटबॉल, वाह, उस टाइम पे फुटबॉल नहीं था डियर। तो ये गंगाराम जी को खाना बहुत पसंद था। तो ब्राह्मण थे, उन दिनों में और कुछ काम नहीं रहता था, हर रोज़ भिक्षा मांगने जाते थे। जो भी खाना लाते थे उनकी पत्नी उनसे अच्छे अच्छे भोजन बना के खिलाती थी, कभी लड्डू बनाती थी, कभी हलवा बनाती थी, और ऐसे ही उनका निभाव चल रहा था। लेकिन उनकी पत्नी को रियलाइज़ हुआ कि अगर जैसे हमको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो इतनी तनख्वाह से, इतने भोजन से काम नहीं चलेगा, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, उन्हें थोड़ा और धन कमाना चाहिए। तो वो कहाँ से लाए? तो उसकी पत्नी ने उनके पति को, गंगाराम जी को, बोला कि देखिए हमें अब ज़्यादा धन की ज़रूरत है और हमारे जो अभी राजा हैं वो बड़े गुणी राजा हैं। गुणी राजा मतलब वो ही इज़ अ गुड मिनिस्टर। तो आप अगर कुछ अच्छी सी कविता सुनाएंगे या अच्छा सा श्लोक बताएंगे तो वो आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, 100 गोल्ड कॉइन्स, राइट। तो इतने ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो बाद में हम अपनी ज़िंदगी शांति से गुजार पाएंगे। अभी गंगाराम जी ने बोला कि देखो भाई, मुझे एक ही काम आता है। क्या आता है? खाना खाना। मुझे ये सब कविता वविता आता नहीं है और मैं वहाँ जाऊँगा राजा के सामने क्या बोलूँगा, इतनी बड़ी तो मेरी कैपेसिटी है ही नहीं। तो उसने पत्नी के बोला देखो चिंता मत करो, आपने ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया, मेरे साथ शादी की है, ठीक है, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। मैं आपको एक अच्छा सा श्लोक लिख के दे रही हूँ। 4 गांव जाके राजा का महल है, वहाँ पे आप जाइए और ये श्लोक बोल दीजिए, ठीक है, और आप जैसे ही श्लोक बोलेंगे तो राजा आपको इनाम दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा एक काम करना, मुझे अच्छा सा खाना बांध के देना, फिर मैं जाता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, खाना नहीं मिलेगा, खाना खाया तो आप भूल जाएंगे।
तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ से निकलिए सवेरे सवेरे, सीधा वहाँ जाके पहले श्लोक बोलिए, बाद में आपको खाना मिल जाएगा, वो राजा जी खुद आपको खिला देंगे। तो वो बेचारा मुंह छोटा बना के जो उनकी पत्नी ने श्लोक दिया था वो रटते रटते चले। एक गांव गया, दूसरा गांव गया, राजा का महल तो आ नहीं रहा था और बीच में लग गई उनको भूख। तो वो 2 गांव के बाद में एक आया तालाब, उसके बाजू में फल वाले झाड़ रखे थे, उन्होंने फल खा लिए, तालाब देख के उनके में नहाने पड़े और जैसे ही अंदर गए वो श्लोक भूल गए, क्योंकि उनको तो इतनी याद शक्ति थी नहीं, याददाश्त थी नहीं, आपके जैसे स्कूलों में नहीं पढ़ते थे वो। तो वो भूल गए, अब वापस नहीं जा सकते, पता था कि बड़ी पिटाई होगी भाई। हाँ, और जाना है राजा के महल में, ऐसे जा नहीं सकते राजा के महल में, कुछ तो चाहिए दिमाग में। तो वो अपना सर खुजलाने लगे, सोचने लगे क्या क्या किया जाए, क्या किया जाए। इधर उधर वो इंस्पिरेशन के लिए देखने लगे, कुछ दिखे जिससे मैं कुछ बनाऊं। तो दूर उन्होंने एक पक्षी को देखा, बगुला था, वो कुछ अपनी पैर से खुतर रहा था, खोद रहा था कुछ। तो उन्होंने पहली लाइन सोची, खड़बड़ खड़बड़ खोदत है। हाँ, बोला खड़बड़ खड़बड़ खोदत है। बाद में जैसे ये आवाज़ सुनी तो बगुला चौंक गया कि यार यहाँ पे कौन है। तो उसने यूं अपनी गर्दन ऊंची की और इधर उधर देखने लगा। तो उनको दूसरी लाइन याद आई, बोला ऊंची गर्दन देखत है। ठीक है, तो 2 लाइन हो गई, पहली खड़बड़ खड़बड़ खोदत है और दूसरी लंबी गर्दन देखत है। अब ये देख के वो बगुले को लगा कि यार कोई तो मुझे बैकग्राउंड साउंड दे रहा है, कौन है। तो वो एकदम लपक गया और इधर उधर देखने लगा कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो उनको तीसरी लाइन मिल गई, क्या थी, कुक्कड़ मुक्कड़ बैठत है। हाँ, एकदम ऐसे ऐसे होके बैठ गया। तो बोले कुक्कड़ मुक्कड़ बैठत है। अब वो बगुले को लगा यार कुछ डेंजर है, यहाँ से चलो भागा जाए। वो तुरंत भागा और इससे अपने गंगाराम जी को मिल गई चौथी लाइन, क्या, दड़बड़ दड़बड़ दौड़त है, भागत है। तो क्या 4 लाइन हो गई अपनी। पहली हो गई खड़बड़ खड़बड़ खोदत है, ऊंची गर्दन देखत है, कुक्कड़ मुक्कड़ बैठत है और दड़बड़ दड़बड़ भागत है, दौड़त है। तो ये लाइन उनकी खुद की बनाई हुई थी। तो वो सीना तान के चले और भगवान का नाम लिया और बोला पत्नी के पास जाने से बेहतर है राजा के पास जाया जाए, हो सकता है वहाँ बेटर ट्रीटमेंट मिलेगी। तो वो गए राजा के दरबार में और राजा के दरबार में जाके उन्होंने कहा, प्रणाम महाराज, मैं एक अच्छा कवि हूँ, अच्छा पंडित हूँ और मैं एक बहुत ही बढ़िया श्लोक लाया हूँ आपके लिए।